seed tegmen So, hi is everyone. absent, and in that today we are going to discuss about and about in the that last that topic it of means this that the chapter, inner that is integument the has not changed apomixis itself, and the or it has not polyembryony. developed itself उसके into बाद the when we end tegmen. when we are Okay? done with this Now topic, the we'll testa start we've studied with that the the question and testa the answers. Okay? is a Now, thick layer. what is okay, it is a apomixis? smooth layer. It क्या acts होता है as a कि protective मतलब covering of the जैसे कि अपन ने seed. पहले पढ़ा था कि okay, it is seeds are the impermeable products to of water, the temperature, sexual etc. reproduction. and it ठीक है? leads the seed लेकिन to in the some plants, dormancy. like some okay, the plants like dormancy period Asteraceae means it and is grasses not germinating have at that developed time. a mechanism Now the second layer, develop okay, one us more thing to that the produce the testa seeds is without brown in color. fertilization. Okay. ठीक है? Now the another Some thing was the plants tegmen. like Now the Asteraceae tegmen and was the inner grasses covering. It is thin and membranous. developed Okay, and it also has a protective special function for the seed, mechanism that it protects it from to the outer produce environment, etc., etc. Okay. Now seeds. it is whitish in color. ओके बाकी सब टेस्टा टेगमेन का फंक्शन सेम होता है कि प्रोटेक्टिव And नेचर की this होती है, and mechanism सीड को क्या होती is है, known डैमेज as नहीं होने देती. नाउ दैट वाज apomixis, ऑल अबाउट ठीक है? द पार्ट ऑफ द सीड, मतलब सीड में क्या क्या होता है. ओके ये क्या होता है? Now, एपोमिक्सिस क्या होता है एज कि जब asexual सीड type मैच्योर of होता है. reproduction होता ओके है. नहीं, वन मोर थिंग वी हैव डिस्कस के जो Asexual सीड होता है, जो माइक्रोपाइलर reproduction. एंड था, ठीक है, देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे क्या थी कि इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, ओव्यूल में. उस पॉइंट को हमने That क्या कहा था, माइक्रोपाइलर एंड. mimics द माइक्रोपाइलर एंड परसिस्ट इन द सीड एज वेल. ओके उसमें क्या होता है कि माइक्रोपाइलर एंड जो होता है सेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन अभी भी क्या होता है, एक ठीक है? पोर की तरह, एक ओपनिंग की तरह इज प्रेजेंट इन द सीड्स, and it permits ये the entry of the asexual oxygen and the reproduction होता है water that mimics the sexual during the reproduction. seed Why we germination. said that? ठीक है, Because अब asexual reproduction ये does माइक्रोपाइलर not एंड क्या involve कर रहा था the, कि उस सीड को वाटर और fertilization ऑक्सीजन process, दे रहा था. okay? तो जस्ट लाइक दैट लेकिन इट आल्सो डज जैसे नॉट जैसे क्या इन्वॉल्व होता है कि द as the fertilization seed matures process or the sexual reproduction, but or whereas it becomes just like relatively sexual reproduction, it That. does produce the ठीक है? seeds in the जैसे जैसे plants. सीड ठीक मैच्योर है? होती है, ये That's क्या होती why है कि we've रिलेटिवली said ड्राई that हो it is जाती a है. इसका जो asexual वाटर type of कंटेंट है वो reproduction 10 से 15% क्या हो mimics जाता है, the कम होना चालू हो जाता है. ठीक है, जब सीड पूरा मैच्योर हो जाती है, एपोमिक्सिस जो है ना, इट कैन वो बी ड्राई हो जाती है, एंड like these seeds can be formed by जब पूरी the तरह से उसका several development ways. होता ठीक है, there are several या ways तो कि वो without germinate करती है, ठीक है, fertilization after क्या the है maturation of कि the ये seed, seeds ठीक form है? हो रहे हैं. After the First तो maturation क्या of the होगा? seed क्या करेगा, या तो जो वो germinate डिप्लॉयड करेगा, एग सेल है, ठीक है, या तो वो क्या करेगा, डॉर्मेंसी में चला जो जाएगा, मतलब diploid egg जर्मिनेट cell है, नहीं करेगा, वो एक इनएक्टिव पीरियड में क्या करेगा, वो घुस क्या जाएगा. करेगी उस कि ड्यूरेशन में क्या reduction होगा, division के बिना ही क्या हो गई है, फॉर्म कि हो जो गई है, ठीक है. इट इज जैसे फॉर्म्ड जैसे विदाउट seed मैच्योर mature होता होता जाता है ना, division जो सीड and का develops मेटाबॉलिक into the प्रोसेस चल रहा है embryo अंदर, without the डेवलपमेंट का, ग्रोथ fertilization, का, ठीक है, वो भी क्या होता जाता है, मैं दूसरे डिक्रीज होता जाता है. जैसे जैसे एज द सीड मैच्योर्स इट First बिकम्स method तो रिलेटिवली क्या हो ड्राई, जाएगा? एज वेल एज द मेटाबॉलिक जो डिप्लॉयड एक्टिविटी एग सेल है of the seed slows वो down. क्या करेगा कि विदाउट मियोसिस फॉर्म हो Now, जाएगा. जब ठीक पूरी है? तरह से सीड मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद दो चीजें ये होंगी, क्या either it करेगा will germinate or it will go into the embryo period में of the ये dormancy, जो diploid or egg cell it will है, go, it वो will क्या करेगा, enter divide the करता period रहेगा और of क्या हो the जाएगा, convert inactiveness. कर ठीक देगा है, खुद उस को ड्यूरेशन में क्या करेगा, embryo वो में, ग्रो ठीक नहीं है? करेगा, वो Without germinate the नहीं करेगा. fertilization से ठीक क्या है, करेगा, ये डिवाइड अब करेगा. डोरमेंट किस स्टेज में रहेगा और जर्मिनेट किस स्टेज में But रहेगा. not अगर मियोसिस. उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, ठीक है, मियोसिस से तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन होता है, seed ठीक है, gets जस्ट डिवाइड a favorable environment to germinate, एम्ब्रियो. it will germinate. फर्स्ट ठीक है? प्रोसेस जिससे And कि by क्या the हो जाएगा, favorable environment, ये खुद को I सीड्स में mean कन्वर्ट कर लेंगे आगे जाके. ठीक है, द सेकंड प्रोसेस इज
जो सिट्रस या मैंगो के जो प्लांट्स होते हैं, व्हाट दे डू इज, इनमें क्या होता है कि जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हम फीमेल पार्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूसेलर सेल्स हैं वो न्यूसेलर सेल्स क्या करते हैं कि वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, डिवाइड होते होते जो सराउंडिंग उनका एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या करते हैं कि प्रोट्रूड होना चालू करते हैं, और यही क्या करते हैं कि एम्ब्रियोज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो न्यूसेलर सेल्स हैं, न्यूसेलर सेल्स हैं वो क्या करता है, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके क्या करेंगे, ये जो एम्ब्रियो सैक है जिनको ये सराउंड कर रहे हैं, दे विल स्टार्ट प्रोट्रूडिंग द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। जैसे ही ये एम्ब्रियो सैक को प्रोट्रूड कर लेंगे, दे विल डेवलप इनटू एम्ब्रियोज, ठीक है। इन्होंने क्या किया, खुद को एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप करके खुद को एम्ब्रियोज में क्या किया, डेवलप कर लिया, ठीक है। अब ऐसी स्पीशीज जनरली क्या होता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है उनसे ये जाइगोट बन के एम्ब्रियो वगैरह बनता है, लेकिन जो स्पीशीज, मतलब इसमें क्या हो गया कि न्यूसेलर सेल्स है, न्यूसेलर सेल्स तो कितने सारे सेल्स हैं, वो सारे खुद को डिवाइड करके क्या कर रहे हैं, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करके खुद को एम्ब्रियोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें कि बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऐसी स्पीशीज जिनमें कि मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। द स्पीशीज दैट कंटेन्स मोर देन like one embryos, okay, so these species we've said the polyembryony, क्योंकि इनमें क्या है कि काफी सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो एपोमिक्टिक वाले, जो एपोमिक्सिस करने वाले जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि काफ़ी सारे एम्ब्रियोज प्रोड्यूस होते हैं, और इसलिए उन एम्ब्रियो को, मतलब वो सीड्स जिनमें क्या है कि बहुत सारे एम्ब्रियोज अकर होते हैं, उस स्टेज को हमने क्या बोल दिया, पॉलीएम्ब्रियोनी बोल दिया, ठीक है। बिकॉज जनरली अ सीड कंटेन्स अ सिंगल एम्ब्रियो, बट व्हेन इट कंटेन्स more than one embryo it is referred to as polyembryony, ठीक है। when seeds contain more than one embryo, this condition is known as polyembryony, ठीक है। ओके, नाउ द अनदर थिंग, ये बहुत एक छोटा सा डिस्कशन है, डिस्कशन भी नहीं है, इवन बुक में भी छोटा सा दे रखा और हम भी उसको उतना ही लेंगे कि जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होती है कुछ फ्रूट्स की, ठीक है, देयर आर हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सेवरल ऑफ अ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, जिसको क्या करते हैं अपन एक्सटेंसिवली कल्टीवेट करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम क्या करते हैं उसकी खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है।
वो हाइब्रिड वेराइटीज, हाइब्रिड इफ यू नो कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें क्या हो कि कुछ कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। कॉम्बिनेशन हाइब्रिड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दी डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, जो हमको चाहिए, अलग अलग प्लांट से हो सकता है, अलग अलग स्पीशीज से हो सकता है, ठीक है, उनका जब हम कंबाइन करते हैं, क्योंकि हमको एक कहते हैं ना डिज़ायरेबल कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, तो उनका जब अपन को कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, वो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो इन्हीं कुछ हाइब्रिड्स का क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा खेती होती है, लेकिन ये जो हाइब्रिड्स हैं, ठीक है, इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनको क्या करते हैं कि हाथों हाथ जैसे ही सीड्स बने वैसे ही हमको क्या करता है उससे प्लांट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर अपन ने उनको कलेक्ट करके रखा और बाद में हमने उनको सोन किया या बाद में हमने उनकी खेती की, उस केस में क्या हो जाएगा कि उनके जो कैरेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है, उनके वो एसेंशियल कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे, जो सारे के सारे हमको चाहिए थे, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हमको क्या मिलेंगे, उस प्लांट में नहीं मिलेंगे अगर हमने उनको कलेक्ट करके रखा तो, ठीक है। तो इसका क्या हमने चीज़ देखी कि जब अपन को ये बार बार ये हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस करनी पड़ रही है ना, तो ये क्या करता है कि फार्मर को काफ़ी महंगा पड़ जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या रास्ता निकाला कि जब अपन ने एपोमिक्सिस से इन हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन कराने की कोशिश की बाय एप्लीकेशन ऑफ सम हार्मोन्स एक्सेट्रा, ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि जब इसको एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो एपोमिक्टिक सीड्स हैं उनको अपन को क्या है कि हाथों हाथ ऑन द स्पॉट इमीडिएटली क्या है कि सोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथों हाथ अपन उसको क्या कर सकते हैं कि ईयर बाय ईयर उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे प्लांट्स, ठीक है, बार बार अपन को नई सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, अपन उन्हीं सीड्स को, उन्हीं एपोमेक्टिक सीड्स को अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ईयर टू ईयर फॉर द प्रोडक्शन, ठीक, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया कि एपोमेक्टिक सीड्स को अपन ने ज़्यादा नंबर में बनेगी तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको टाइम टू टाइम यूज़ भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, उसमें कैरेक्टर्स सेग्रीगेट नहीं होते, जो सारे कैरेक्टर्स अपन को चाहिए वो एज इट इज़ मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब जो भी हाइब्रिड सीड्स होती है वो एपोमिक्सिस के थ्रू प्रोड्यूस कराते हैं सो दैट द कैरेक्टर्स डज नॉट सेग्रीगेट, ठीक है। सेकंड ये है कि बार बार उन सीड्स को, हाइब्रिड सीड्स को नया नहीं बनाना पड़ेगा, वो सिमिलर सीड्स क्या हो सकते हैं, ईयर टू ईयर अपन प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस एंड्स आवर चैप्टर। ये जो लास्ट वाला एपोमेक्टिक सीड्स वाला जो था हाइब्रिडाइजेशन वाला, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये बस एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन था, दैट्स वाई आई हैव नॉट डिस्कस्ड एनी डिटेल अबाउट दैट। नॉर्मल सी चीज़ है कि हाइब्रिड प्लांट्स थे, हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन जो प्लांट्स थे जो हमने कुछ डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के लिए बनाया, ठीक है, वो सीड्स जो बनते हैं उससे अपन को कॉम्बिनेशन, डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशन तो मिल जाता है, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है कि हर साल नया प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि अगर अपन उसको कलेक्ट करके रख दे और सोचे कि भाई अगले साल प्लांट्स ग्रो करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे, तो जो उनके कैरेक्टर्स है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब जो सारे कैरेक्टर्स अपन को चाहिए वो बाद में उसमें नहीं मिलते। इसलिए क्या होता है कि फार्मर्स को उनको क्या करना पड़ता है, हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, ताकि वो उसको क्या करें, यूज़ कर सकें। तो ये क्या मामला है कि फार्मर्स के लिए ये प्रोसेस क्या पड़ जाएगा, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इसका ये तरीका निकाला कि जो एपोमेक्टिक अगर अपन हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं एपोमिक्सिस के प्रोसेस से, वो सीड्स क्या करती हैं कि अपन उनको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, मतलब ईयर टू ईयर फॉर द प्रोडक्शन थिंग, ठीक है। उसके क्या होते हैं कि जो कैरेक्टर्स है उसमें क्या होता है, सेग्रीगेट नहीं होते। इस वजह से आप क्या हो गया, ये प्रोसेस थोड़ा इकोनॉमिकल हो गया, दैट्स इट, ओके। नाउ ये सब तो था इस चैप्टर के बारे में।
ठीक है. अब we will discuss about the question and the answers that are given after this chapter in your NCERT books. Okay. आई होप कि जैसे हम चल रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा. समटाइम्स आई गेट अ आई कंप्लीट द टॉपिक बिट फास्ट, क्योंकि आई नो दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Otherwise, I am taking the things very slowly, okay, and I am discussing the important points as much as I can. So now we'll discuss the question and answers. पहले जो book के पीछे हैं, then we'll discuss about the question and the answers that are given in between your chapters, because sometimes they are also being asked. Okay. Now the first question is, name the part of angiosperm flower in which development of the male and the female gametophyte takes place. ठीक है. इसने क्या पूछा है कि ऐसे एंजियोस्पर्म फ्लावर के उन पार्ट्स के नाम बताओ जिससे कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेल गेमेटोफाइट जो है वो क्या होता है, पोलन सैक के अंदर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है. ठीक है. और जो फीमेल गेमेटोफाइट है that are developed in the ovule, अपन कह देंगे ओव्यूल. ठीक है. और न्यूसिलस सेल्स क्या करते हैं, इसको सराउंड करते हैं आपस में, मतलब इसके आसपास इसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं. ठीक है. द सेकेंड क्वेश्चन इज, differentiate between the microsporogenesis and the megasporogenesis. हम इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ अटेंड नहीं करेंगे, जो जो इसके पार्ट्स हैं अकॉर्डिंगली डिस्कस करते चलते हैं. ठीक है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फर्स्ट हमेशा कोई भी चीज़ की क्या हो सकती है, डेफिनेशन हो सकती है, दैट the process of formation of the microspore is known as microsporogenesis. ठीक है. and the process of formation of the megaspore from the megaspore mother cell is known as megasporogenesis. ठीक है. और उसमें क्या हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम दी माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है. ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन, जो कि क्या हो जाएगी, इसका पहला इसी पे लिखते चलते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है.
फर्स्ट तो इन दोनों की डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, के द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फाइनल प्रोडक्ट इज द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या है इसका फाइनल प्रोडक्ट। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। फर्स्ट हो गया इसका डेफिनेशन, सेकंड हो जाएगा क्या इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा कि जब मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है कि जब डिवाइड करती है, ठीक है, इस प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है, मतलब इंक्लूडेड है इसमें, कि जो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, व्हेन इट डिवाइड्स इट फॉर्म्स 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, कि मतलब चारों के चारों जो है वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन में डेवलप होंगे, ठीक है, मतलब वो पोलन ग्रेन ही है, ठीक है। वो क्या करेंगे कि भाई जो अपना माइक्रोस्पोर बना है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन में डेवलप होंगे। लेकिन वेयर एज इफ यू रिमेंबर, इसमें क्या होगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल्स जो क्या करेगी कि डिवाइड करेगी मियोसिस से, और जो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे उसमें से क्या होगा कि सिर्फ एक फंक्शनल होगा, द रेस्ट ऑफ द 3 विल डीजनरेट, ठीक है, द रेस्ट ऑफ 3 विल डीजनरेट and only that one megaspore, that functional megaspore will convert itself into the embryo sac or the female gametophyte, ठीक है। ये हो गए इसके 3 बेसिक डिफरेंसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इसी का सेकेंड पार्ट, के पहला तो ये था कि डिफरेंशिएट बिटवीन microsporogenesis and megasporogenesis. Now the next part of this question is that which type of cell division occurs during these events, ठीक है। तो the answer is कि ये जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन से बनते हैं। सो मियोसिस इज द आंसर कि जो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर मदर सेल्स हैं वो क्या करती है, दीज अंडरगो द मियोसिस डिवीजन एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रो स्लैश मेगास्पोर, ओके। ये क्या करती है कि अपना मियोटिक डिवीजन करती है, अपनी प्लॉइडी को आधा करती है, और जो स्पोर्स बनते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन इंक्लूडेड होता है, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। अब नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म एट द एंड ऑफ दीज 2 इवेंट्स, ठीक है। तो ये तो हमने पहले ही नेम कर दिया था कि भाई जो एंड स्ट्रक्चर्स है जो कि फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ दिस इवेंट इज द मेल गैमेटोफाइट दैट इज द पोलन ग्रेन, ठीक है, एंड द फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो
एंड होता है एज द एम्ब्रियो सैक, एंड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इट एंड्स एज द pollen grain. Okay, the next questions will discuss in the next class. Okay, thank you.